I greet all of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। Beloved, I wanted to talk to you something very, very important this day. प्यारे लोगों, आज के दिन आपके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। Last, I was telling about God. अभी मैं परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था। Now I wanted to tell you about the problem that is facing on this earth. और आज हम अभी जो लोग ये मुसीबत का जो सामना कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। The Bible gives an answer. बाइबल इसका जवाब देती है। John chapter 8 यूहन्ना 8 verse 31 says, 31 में लिखा है, Jesus said like this, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, if you abide in my word, अगर आप मेरे वचन में रहोगे, verse 32 says, you shall know the truth. तो 32 में लिखा है कि आप सत्य जानोगे, The truth will make you free. और सच्चाई आपको आजाद करेगा। My beloved, मेरे प्यारों, if you abide in my word, अगर आप मेरे वचन में रहोगे, you will know the truth. आप सच्चाई जानोगे। If you believe my word, मेरे वचन में विश्वास करोगे, if you listen my word, मेरे वचन सुनोगे and you accept my word, और मेरे वचन को अपनाओगे, you will know the truth. आप सच्चाई जानोगे। The truth will make you free. सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। What is that Jesus speaking? यीशु मसीह क्या कह रहा है? What is God is speaking to us? परमेश्वर हमारे साथ क्या बात कर रहा है? The Bible says, बाइबल कहती है, if you believe my word, अगर आप मेरे वचन पर विश्वास करोगे, you accept my word, मेरे वचन को अपनाओगे, you will know the truth. आप सच्चाई समझोगे। The truth shall make you free. सच्चाई आपको आजाद करेगी। It is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है। In 1 Timothy chapter 2:4, 1 तिमोथी 2:4 he says, यहाँ पर लिखा है, it is all meant to be saved, परमेश्वर की इच्छा है कि सभी लोगों का उद्धार होना चाहिए and all should know the truth. और वे सत्य को भली भांति पहचान चाहिए। All the people सब लोग to know the truth. वो सच्चाई जानना चाहिए। All the people to be saved, सब लोगों का उद्धार होना चाहिए and all people to be know the truth. All people should know the truth. और सब लोग सच्चाई जानना चाहिए। Know this. जान लीजिए, This is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है Not one person should perish. कि किसी का भी नाश नहीं होना चाहिए, All men to be saved, सभी लोगों को उद्धार होना चाहिए, and they should know the truth. उनको सच्चाई मालूम होना चाहिए। It is God's will. ये परमेश्वर की इच्छा है। So, how will you know the truth? तो आप सच्चाई किस तरह से मालूम करोगे? If you abide in the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन में रहोगे and if you believe what God says. और परमेश्वर जो कुछ कहता है उसके ऊपर विश्वास करोगे। One truth, first truth I want to say. पहली सच्चाई यह है, 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 तिमोथी 2:5 Here it is saying, कि यहाँ पर लिखा है, For there is one God there is one God, परमेश्वर एक ही है and one mediator one mediator between God and men, between God and man, the man Christ Jesus. the man Christ Jesus. 1 तिमुथियुस 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवैया है, अर्थात मसीह यीशु मसीह जो मनुष्य है, Who gave himself Who gave himself a ransom for all. ransom for all. That's all. He gave himself a ransom for all. I like और that. 6 वचन में लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। See, listen. सुनिए, What the Bible says? बाइबल क्या कहती है? There is one God. एक ही परमेश्वर है। Do you believe? क्या आप विश्वास करते हो? Do you know? आप जानते हो There is only one God. एक ही परमेश्वर है। Do you believe this? आप विश्वास करते हो? Do you know this truth? ये सच्चाई आप जानते हैं? Not that what is happening in the world. दुनिया में क्या चल रहा है वो जरूरी नहीं है। What God says. परमेश्वर क्या कहता है? There is one God. एक ही परमेश्वर है। First you should know. पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। Bible says. बाइबल कहती है, It is already recorded. ये सब लिखा हुआ है। There is only one God. एक ही परमेश्वर है। If somebody come and say no, there is three.
अगर कोई आके आपको कहेगा कि नहीं 3 परमेश्वर है, you should have the courage to say no. आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि कहने के लिए ना, There is one God. एक ही परमेश्वर है। Then the Bible says फिर बाइबल कहती है there is only one mediator एक ही बिचवैये है between God and the people. परमेश्वर और लोगों के बीच में। God and man, there is only one mediator. परमेश्वर और लोगों के बीच में एक ही बिचवैये है, Only one, एक ही बिचवैये है, not two, 2 नहीं है, not 10, 10 नहीं है, not 100. 100 नहीं है, Only one mediator. एक ही बिचवैये है। Do you know that? आप ये जानते हैं That mediator, वो बिचवैये that is the man Jesus Christ. वो है मनुष्य यीशु मसीह, The Jesus who came as a man. जो यीशु मसीह आदमी बन के आया। Do you know that? आप ये जानते हैं, That means you and God. इसका मतलब आप और परमेश्वर, You and God Almighty. आप और सर्वसमर्थ परमेश्वर, There is no other mediator उसके- except one mediator, Jesus Christ. यीशु मसीह के सिवा और कोई बिचवई नहीं है। That means इसका मतलब Jesus is the only mediator. यीशु एक ही बिचवई है। Now some people will come and say, अभी कुछ लोग आके कहेंगे come madam, you come to me, मेरे पास आइए, I will take you to God. मैं परमेश्वर के पास लेके जाता हूँ। Other you do like this, ऐसा ऐसा करो, I will go to God, I take you to God. मैं परमेश्वर के पास लेके जाता हूँ। According to this Bible, ये बाइबल के अनुसार that is not the truth. ये सच्चाई नहीं है। Bible word is the truth. बाइबल एक ही सच्चाई है, You and God, आप और परमेश्वर one mediator. एक ही बिचवई। That mediator is वो बिचवई है Jesus Christ, यीशु मसीह, the one who came as a man. जो इंसान बन के आया। That Jesus Christ is only mediator for you. वो एक ही यीशु मसीह आपके लिए बिचवई है। Then you should know. तो फिर आपको जानना If चाहिए, at all, if I want to go to God, अगर मुझे परमेश्वर के पास जाना है then I have to take Jesus Christ. तो मुझे यीशु मसीह को लेना चाहिए, I would go to Jesus. मुझे यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। No other way. दूसरा कोई चारा नहीं है। Then the Bible says, फिर बाइबल कहती है the same Jacob, he gave himself a ransom for all the people of the world. जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। That means Jesus इसका मतलब यीशु gave himself उसने अपने आप को दे दिया, as a price. उसने आपका मोल, आपका कीमत, आपका दाम के रूप में दे दिया। Not only you, सिर्फ आपके लिए नहीं, all the people of the world. दुनिया के सारे लोगों के लिए। That means इसका मतलब God gave Jesus as a price and he bought all the people to himself. इसका मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में सारे लोगों का छुटकारे के लिए दाम में दे दिया और आपको खरीद लिया। That means he purchased you. इसका मतलब परमेश्वर ने आपको खरीद लिया। One God एक परमेश्वर who is in heaven, जो स्वर्ग में है, who is ruling the world, जो दुनिया को चलाता है, he has already purchased you उसने आपको खरीद लिया by giving Jesus Christ यीशु मसीह को देने के as द्वारा, a price. कीमत के रूप में। Then you belongs to whom? तो फिर आप किसके हैं? Do you know that? आप ये जानते हैं 100% you are the property of God himself. 100% आप परमेश्वर की संपत्ति हो। That means God, Jesus gave himself. Jesus paid a price. What is the price? He gave himself, he gave his body, he gave his life, he gave his blood, whatever. Everything Jesus had, Jesus paid for it and he purchased it. इसका मतलब यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया, अपना लहू दे दिया, आपका शरीर दे दिया, आपका सब कुछ दे दिया और आपको खरीद लिया। This is the truth. ये सच्चाई है। When you know the truth, जब आपको सच्चाई मालूम होगा, this truth will make you free. ये सच्चाई आपको आजाद करेगा। Bible says like that. बाइबल ऐसा कहती है। Now, अभी you are आप है no longer a slave to anybody. आप किसी के गुलाम नहीं हो। 1 Corinthians chapter 7:23 says, 1 Corinthians 7:23 में लिखा है, 1 Corinthians पहला कुरिन्थ chapter 7 7वां अध्याय verse 23 says, 23 में लिखा है, you are bought at a price. तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। Don't become a slave of man. मनुष्य के दास न बनो।
See, when you are living on this earth, जब आप इस दुनिया में जीवित हो, you are not a slave of man. आप मनुष्य के गुलाम नहीं हो, You are not a servant of man. आप मनुष्य के दास नहीं हो। But now, लेकिन अभी so many people are bossing over you. बहुत लोग आपके ऊपर बॉसिंग कर रहे They हैं, are controlling you. आपको चला रहे हैं। You are not. आप किसी के गुलाम नहीं है, Because you are bought at a price. क्योंकि आप मोल लेकर खरीद ले गए हो। You belongs to God. आप परमेश्वर को आपका मालिक है। Know it, my beloved. जान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, Because क्योंकि God wants all people to be saved, परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों को उद्धार होना चाहिए, and all people know the truth. सब लोगों को सच्चाई मालूम होना चाहिए। What is the truth? सच्चाई क्या है? There is one God, एक ही परमेश्वर है, one mediator एक ही बिचवाई है between man and God, मनुष्य और परमेश्वर के बीच the में, man Jesus Christ. मनुष्य यीशु मसीह। Why only Jesus Christ? क्यों यीशु मसीह सिर्फ? Because क्योंकि He took your sin, उसने आपका पाप लिया, He took your punishment. आपकी शिक्षा को ले लिया, All the punishment due which has been taken by Jesus, and He paid it on the cross. और आपका जो पनिशमेंट था यीशु मसीह ने लेके उसको क्रूस के ऊपर उसका दान दे दिया। Nobody in the world did it. दुनिया में दूसरा किसी ने ये काम नहीं किया, No person did it. किसी व्यक्ति ने नहीं किया, Only Jesus. सिर्फ यीशु मसीह ने किया। That's why. That's why. इसीलिए Bible says, बाइबल कहती है, Jesus said, यीशु बोला, I am the way. मार्ग मैं हूँ, I am the truth. सच्चाई मैं ही हूँ, I am the life. और जीवन मैं ही हूँ। No one can come to the Father but by me. मेरे द्वारा आए बगैर कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। John chapter 14:6 says, यूहन्ना 14:6 में लिखा है। why he said, उसने क्या कहा? I am the way. मार्ग मैं हूँ, I am the truth. सच्चाई मैं हूँ, I am the life. जीवन मैं हूँ। Nobody can come without me. मेरे बगैर कोई नहीं आ सकता। You cannot come to Father without me. मेरे द्वारा आए बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। If you want to come to God, आपको परमेश्वर के पास आना है, first you come to me. पहले मेरे पास आइए। All the guilt, all the punishment that is upon you, it should be paid first. और आपके ऊपर जो पनिशमेंट है उसका सबसे पहले कीमत चुकाना चाहिए। All the punishment for sin must be paid for. आपका पापों की कीमत पहले देना चाहिए। So when you come to Jesus, जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, Jesus already took everything and He already paid for it. यीशु मसीह ने सब कुछ लेके उसका कीमत पहले दे दिया है। When you believe that, जब आप ये विश्वास करते when you हो, accept it, आप ये अपनाते हो, and you are free, तो फिर आप आजाद हो जाते हो। you don't need to pay any penalty. और भी आपको कुछ दंड देने की जरूरत नहीं है। On that basis, you can go to God. और इसी बेसिस के ऊपर आप परमेश्वर के पास जा सकते हो। That's what the truth. यही सच्चाई है। When you know the truth, जब आप सच्चाई जानोगे, the truth shall make you free. सच्चाई आपको आजाद करेगा। Now, अभी if you believe this, अगर आप विश्वास if करोगे, you know this, आप ये जानते हो, you can say very boldly and very well to anyone, anybody in the world, you have no right to touch me. और तो फिर आप दुनिया में किसी को भी कह सकते हो कि आपको कोई अधिकार नहीं मुझे छूने का। You can say to anyone, आप किसी को भी कह सकते हो, Jesus Christ is the one who paid himself. He gave himself. यीशु मसीह ने खुद को दे दिया है, He gave his life. उसने जीवन दे दिया He है, gave his blood. उसका खून दे दिया, He gave his body. उसका शरीर दे दिया, So much he sacrificed. उसने इतना त्याग कर He दिया, purchased me. उसने मुझे खरीद लिया। I belongs to him. मैं उसका हूँ। I am not belongs to you, devil. शैतान मैं तेरा नहीं हूँ, I am not belongs to you, you sickness and disease. बीमारी तकलीफ मैं तुम्हारा नहीं हूँ, I am not belongs to you, you hell. ए नरक मैं तेरा नहीं हूँ, I belongs to Jesus. मैं यीशु मसीह का हूँ, I belongs to him. मैं यीशु मसीह का He हूँ। paid a whole price उसने कीमत चुकाया है for my sake. मेरे लिए। He took my punishment. उसने मेरा शिक्षा ले He लिया, died. वो मर गया, He has gone to hell. वो नरक में गया, He destroyed the hell. उसने नरक का नाश किया And he came back to life. और फिर से जीवित हो गया, And I accepted him. और मैंने उसको अपनाया है, He accepted me. उसने मुझे अपनाया है। So, इसीलिए you devil, हे शैतान, you that death, हे मौत, you evil, हे दुष्टात्मा, you have no right on me. तुझे मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। I belongs to God. मैं परमेश्वर का हूँ। This is the truth. ये सच्चाई है, This truth will make you free. ये सच्चाई आपको आजाद करेगी। This is the one of the truths. ये बहुत से सच्चाई में से एक सच्चाई है, Very important.
बहुत महत्वपूर्ण बात। If you abide in my word, अगर आप मेरे वचन में रहोगे, if you believe my word, मेरे वचन को पर विश्वास करोगे, then you will know the truth. तो फिर आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा। The truth will make you free. सच्चाई आपको आजाद करेगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। I think that you are getting it. मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, And I think that you are able to understand this. और मुझे लगता है कि आप समझ रहे हो। I think you are able to take a decision now. मुझे लगता है कि आप अभी डिसाइड कर रहे हो। You must know now अभी आपको मालूम होना चाहिए the truth. सच्चाई क्या है। Another thing, my beloved, और एक बात मेरे भाइयों, the Bible says. बाइबल कहती है, See, because Pastor was telling me, पास्टर मुझे बता रहे थे, so many people are in sickness. बहुत लोग आज बीमार है, They are all dying. मर रहे हैं। How to come out? कैसा बाहर आने का, What is to be done? क्या करना चाहिए, What the Bible says. बाइबल क्या कहती है। First of all, you make a decision सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए that you want to be healed. कि मुझे चंगा होना है, I don't want to be at sick. मुझे बीमार नहीं रहना है। You have to take a decision. आपको डिसाइड करना है। First, सबसे पहले I don't want to be sick. मुझे बीमार नहीं रहना है, What I have to do? मुझे क्या करना चाहिए। What the Bible says. बाइबल क्या कहती है। One by one, I will give you some word. और कुछ एक के बाद एक मैं आपको वचन बताऊंगा। If you read Exodus chapter 15 verse 26, निर्गमन 15:26 में लिखा है, God said, परमेश्वर कहता है, I am the Lord that healeth thee. तुझे चंगा करने वाला मैं ही परमेश्वर हूँ। First you should know, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए, God said, परमेश्वर ने कहा, I am the Lord. मैं ही परमेश्वर हूँ, I am the Lord मैं ही परमेश्वर हूँ that heal you. कि जो तुझे चंगाई करता है। Not your medicine, तेरी दवाई नहीं, not your doctors, तेरा डॉक्टर नहीं, not your all things what you do. जो तू करता है वो नहीं, No. नहीं। First you should know, सबसे पहले तुझे मालूम होना चाहिए, God. परमेश्वर, I am the Lord. Lord means Jesus Christ. लॉर्ड, प्रभु का मतलब होता है यीशु मसीह। First you should know, Lord, I am the Lord that healeth thee. कि मैं ही तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, No one else. दूसरा कोई नहीं है। The world may say so many things, लोग कुछ भी कहेंगे, but लेकिन God says, परमेश्वर कहता है, I am the Lord that healeth thee. मैं परमेश्वर हूं तुझे चंगा करने वाला, Nobody else. दूसरा कोई नहीं। Can you believe? क्या आप विश्वास करते हो? If God says, I am the Lord that healeth thee, अगर परमेश्वर कहते कि तुझे चंगा करने वाला मैं हूं, if you leave him and go and search anywhere, how do you get healing? उसको छोड़ के आप और जगह जाके ढूंढोगे तो कैसे ठीक हो जाओगे? You will never be healed. आप ठीक नहीं होगे। Why? क्यों? Because he is the healer. क्योंकि वही परमेश्वर है। God is the healer. परमेश्वर चंगा करने वाला है। Why this sickness is coming? बीमारी क्यों आ रही है? What is the root of the sickness? ये बीमारी का जड़ क्या है? The sickness is an enemy. ये बीमारी शत्रु है। You take any sickness in the world, दुनिया का कोई भी बीमारी आप लीजिए, all the sicknesses is our enemy. ये सारी बीमारियां शत्रु है। It doesn't come to love you. वो आपसे प्यार करने के लिए नहीं आती है। The sickness doesn't come to kiss you. ये बीमारी आपको चुमने के लिए नहीं आती है। That sickness doesn't come to give prosperity. ये बीमारी आपको समृद्धि देने के लिए नहीं आती है। Doesn't come, the sickness doesn't come to give you joy and rejoicing and happiness. और ये जो बीमारी आती है आपको खुशी और आनंद देने के लिए नहीं आती है। The sickness doesn't come to have a party to you. और ये बीमारी आपको पार्टी देने के लिए नहीं आती है। It comes to steal you, number one. ये सबसे पहले आपको चोरी करने के लिए आती है। Then it will come to kill you. तो फिर आपको खत्म करने के लिए आती है। Then it comes to destroy you. आपका नाश करने के लिए आती है। Jesus said so. यीशु मसीह ने कहा, First you should know, आपको पहले मालूम होना you चाहिए, take any sickness in the world, दुनिया का कोई भी बीमारी आप it लीजिए, is coming only to steal, kill and destroy. चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आ रही है। Number one, पहली बात, he steal all your money.
और सबसे पहले आपका पैसा चोरी करके जाती है, He steal all your joy. आपका खुशी चोरी करके जाती है, He steal all your health. आपका पूरा तबीयत चोरी करके जाती He है, will come and steal you away from God. आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती है, He will steal your mind. आपका माइंड को चोरी करती है, He will steal you all the nature of God. He will steal from you. आपका परमेश्वर के अंदर का जो स्वभाव है वो चोरी करके जाती है, Then He will kill your body. आपका शरीर को खत्म करती है, He will kill your body. आपका शरीर को खत्म करती है, That's ultimatum. और यही सब चल रहा है। Then after that, उसके बाद when you kill the body, जब when आपका He शरीर- kill the body, जब आपका शरीर को खत्म करता है, then He will take your life, आपका जीवन लेके जाएगा, your soul. आपका जान को He लेके will जाएगा, take you and throw you into the eternal fire. आपको हमेशा का अग्नि में डाल देगा। That is called destruction. इसको कहते हैं नाश। That's why sickness comes for this purpose. इसी कारण से बीमारी आती है। He is coming from, He is an enemy number one. वो अब सबसे पहले आपका शत्रु है। Enemy means शत्रु मतलब Satan. शैतान, His main agenda is to kill the people. और उसका एक ही काम है लोगों को खत्म करना। How he will do, who will do it? वो कैसा करेगा? He will make you to do all things which God said not to do. और परमेश्वर जो कुछ मत करो ऐसा कहता है वो करने के लिए आपको लगाएगा। And He will only do all these things to you, who make you to do all things. वो आपको बहुत सी बातें करने को लगाएगा। The Bible says, बाइबल कहती है your body आपका शरीर is the temple of God. वो परमेश्वर का मंदिर है। And when your body is the temple of God, जब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, He will come and say, वो आके बताएगा and spoil the temple. आपका मंदिर को खत्म करेगा। He will say, put some liquor on that. उसमें कहेगा कुछ तो उसके अंदर थोड़ा शराब डाल, You do this one, ऐसा ऐसा कर, so that your body will be spoiled. ताकि आपका शरीर खत्म हो जाएगा। Then so many sickness will come and affect you. तो बहुत से बीमारी आके आपको तकलीफ देगा। That is what he does it. वो ऐसा करता है। The Bible tells, बाइबल बोलती है this affliction, this sickness, ये बीमारी, Bible say it is, Jesus said it is an oppression of the devil. यीशु मसीह ने कहा कि ये शैतान की जबरदस्ती है। Oppression, वो आपको जबरदस्ती करता है, affliction, वो आपको तकलीफ देता है, attack. आपको हमला करता। In the last episode, I said the whole world lies in the sway of a wicked one. पिछले वचन में पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि जो सारा दुनिया है वो शैतान के वश में चल रहा है। He only do this. तो सिर्फ तुम ऐसा करो, He afflicts you. वो आपको तंग करता, He oppresses you. आपको दबाता, He kill you. आपको खत्म करता। That's what he is doing. वही वो कर रहा है। But who can heal from here? तो आपको उसके कौन छुड़ा सकता है? God. परमेश्वर, He is the one. वो एक ही है। Beloved, प्यारो, first you should know सबसे पहले आप ये मालूम होना that you चाहिए, should give the focus on God. He is the only one can heal you. आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए कि वो एक ही आपको चंगा कर सकता है। Number one. पहली बात। Number two. दूसरी बात, I want to say, मुझे कहना है God is so loved. परमेश्वर इतना प्यार करता He है, never think and second that you should be sick in your body or anywhere in your soul or spirit. और परमेश्वर इतना भी नहीं सोचता कि आपका शरीर में, जान में या आत्मा में आप थोड़ा बीमार होना चाहिए। No, never he will think वो कभी भी ऐसा सोचेगा भी नहीं that you should be in sickness. कि आप बीमार में होना चाहिए। That's not his will. वो इसका इच्छा नहीं है। Because since the people are going and living with the enemy, whatever he says, they keep doing. और लोग आज जा रहे शैतान के साथ रहते हैं और जो शैतान बोलते हैं वही कर रहे They हैं are disobedience to God. और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं They do so many things और बहुत बातें कर रहे हैं which is not according to the word. जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। Or whatever the enemy says, they will do. जो कुछ शत्रु बोलता है वो करते हैं, That's why they have no health. इसीलिए उनके पास आज तबीयत अच्छी नहीं है। But God said, लेकिन परमेश्वर कहता है, Bible says, Jeremiah chapter 33 verse 6. यिर्मयाह 33:6 में लिखा है, Jeremiah 33:6, what God says, God has given a promise. और यिर्मयाह 33:6 में परमेश्वर ने वचन दिया है, Behold, I will bring it health and healing, and I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. यिर्मयाह 33:6, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। Hindi में ठीक से it is not been translated well. राइट, नगर का नहीं, हाँ। help to you, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको चंगाई दूंगा and I will heal you. और मैं तुम्हें चंगा करूंगा I will declare to you the abundance of peace and truth.
और शांति और सच्चाई बहुत ऐसे मैं तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा I will reveal to you, और मैं तुम्हें दे दूंगा, declare to you. मैं घोषित करूंगा। Listen, सुनिए, God said, परमेश्वर कहता है, I will bring health to you, and I will heal you, and I will bring you abundance of peace and abundance of truth. और परमेश्वर कहते कि मैं तुम्हारे पास चंगाई लेके आऊंगा, तुम्हें चंगाई करूंगा और शांति और सच्चाई बहुत ऐसे तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। It is चंगाई लेके आएंगे, ऐसा लिखा है हिंदी में, हेल्थ। सॉरी, हिंदी में लिखा है, इलाज करके लिखा है, लेकिन यहां पर लिखा है कि मैं तुम्हें चंगाई लेके आऊंगा। I will bring health, divine health. I will bring divine health to you so that you will never get sick. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें दैवी रूप से चंगा करूंगा ताकि आप कभी बीमार नहीं हो जाओगे। Health. चंगाई, तबीयत। How do you know? Translate in Hindi. See, I will bring health to you. Health means divine. इसका मतलब आरोग्य। मैं तुम्हें आरोग्य, हाँ। डिवाइन आरोग्य, दैवी आरोग्य तुमको दूंगा। I bring आरोग्य. That means there is no need of healing. तुम्हें चंगाई की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें आरोग्य दूंगा। Divine, always you will be in health. आप हमेशा आरोग्य में रहोगे। This God promise. ये परमेश्वर का अभिवचन है। In Jeremiah chapter 30 verse 17 says, यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, you should, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम। आगे पढ़ने का है, बस नहीं, बस नहीं। see, I will, Jeremiah chapter 30 verse 17, 30:17 I will declare, For I will restore health to you I will restore health to you, and heal you I will heal you of your wounds. of your wounds. देखो ना, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, इतना ही लिखा है। see, I will restore your health. The health that arogya, the health that you lost it, I will restore you. परमेश्वर कहते हैं कि जो तुम्हारा आरोग्य गुम गया है वो फिर से तुमको मैं प्रदान करूंगा, ऐसा प्रभु कहता है। I will heal your wounds. मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। That's God's promise. ये परमेश्वर का अभिवचन है। This is what God has promised us, यही परमेश्वर ने वचन दिया है। my beloved. मेरे प्यारो, And not only He promised, but He completed it. और सिर्फ उसने वचन दिया इतना ही नहीं है, उसने वो पूरा भी किया। That He has completed it. उसने वो पूरा भी किया। The Bible says, बाइबल कहती है, Psalm chapter 107:20. भजन संहिता 107:20, Here it says, यहाँ पर लिखा है, beloved, सुनिए, God sent His word and healed them and delivered them from destruction. भजन संहिता 107:20, वह अपने वचनों के द्वारा उनको चंगाई करता। गलत ट्रांसलेशन हिंदी में लिखा है 107 और 20 हिंदी में लिखा है, गलत ट्रांसलेशन है। सॉरी, इंग्लिश का ट्रांसलेशन एक बार पढ़ता हूं, कम ऑन रीड इट। He sent his word God sent His word and healed them. and healed them. परमेश्वर अपने वचन को भेज के उनको चंगा करता है। करता नहीं, चंगाई किया। ओ, अब हमारा हिंदी में गलत वो है। गलत है, हिंदी ट्रांसलेशन में गलत Yes, लिखा है। yes. God sent His word and healed them and delivered them from their destruction. इसका मतलब परमेश्वर अपनी वचन को भेजकर उनको चंगाई किया है, Yes. और अपना नाश से उसको छुटकारा दिया है। आमीन। यह है बाइबल, यह है परमेश्वर। परमेश्वर यह बोलता है, He sent His word and healed them
अगर परमेश्वर ने अगर इन गॉड सेंड हिज वर्ड एंड हील्ड द पीपल एंड डिलीवर्ड द पीपल, वेयर इज द सिकनेस नाउ इन द वर्ल्ड? और परमेश्वर ने उसका वचन भेज के लोगों को चंगा किया है, उनको नाश से निकाला है, तो दुनिया में बीमारी है कहां से? फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? कहां से आ रही बीमारी? व्हाट इज दैट वी आर सीइंग? हम लोग क्या देख रहे हैं? व्हाट इज होल थिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया में क्या हो रहा है? When God sent a word, God healed the people. When God has healed them, from where this sickness is coming? अगर परमेश्वर ने लोगों को वचन भेज के चंगा किया है, तो बीमारी कहां से आ रही है? किसका? Which word you will believe? आप कौन से वचन पर विश्वास करोगे? Do you believe God's word or do you believe what is happening in the world? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे, क्या दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर विश्वास करोगे? Now listen, my beloved. अभी सुनिए मेरे प्यारे भाई बहनों, Jesus said, यीशु ने कहा, if you believe my word, अगर मेरे वचन पर विश्वास करोगे, if you abide my word, मेरे वचन के अंदर रहोगे, and if you accept my मेरे word, वचन को अपनाओगे, you will know the truth. आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा, The truth will make you free. सच्चाई आपको आजाद करेगा। According to this word, ये वचन के अनुसार word is telling me, वचन मुझे बताता है, God healed me. परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। God healed all the people of the world. परमेश्वर ने दुनिया के सारे लोगों को चंगा किया है। God delivered the people from the destruction. परमेश्वर ने लोगों को नाश से बचाया है। Again I say, फिर से मैं कहता हूं, Jesus said, John 14:6, यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, believe on God. परमेश्वर पर विश्वास करो। Let not your heart be troubled. आपका दिल है उसको व्याकुल मत होने दो। Believe in God. परमेश्वर पर विश्वास करो। Believe in me. मेरे ऊपर विश्वास करो। Believe God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। Believe in me. मेरे ऊपर विश्वास करो। Now God say, अभी परमेश्वर कहता है, He healed all the people. उसने सब लोगों को चंगा किया है। When you see the world, जब हम दुनिया को देखते हैं, so many kinds of sickness and disease. इतने तरीके की बीमारी और रोग है। From where it is coming? ये कहां से आ रही है? Now you tell me, अभी आप मुझे बताओ, which is the truth? कौन सी सच्चाई है? What you see in the world, जो दुनिया में आप देख रहे हो, or what you hear from God? कि जो आप परमेश्वर से सुन रहे हो? Whose voice you are listening? आप किसकी आवाज सुनना चाहते हो? Which sound you are believing? आप कौन सी वाणी पर विश्वास करोगे? Which one you believe? आप कौन सा विश्वास करोगे? Beloved, प्यारो, very important. बहुत महत्वपूर्ण बात है। This is to be understood. ये समझ लेना है। If you know God, अगर आप परमेश्वर को जानोगे, if you believe God, परमेश्वर पर विश्वास करोगे, if you believe God's word, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे, then you are 100% healed by God. तो फिर और 100% परमेश्वर से चंगाई पा चुके हो। Bible tells us 2 Corinthians 5:7. 2 कोरिन्थ 5:7 में बाइबल कहती है, It says, यहाँ पर लिखा है, we walk by faith, not by sight. हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, आंखों के 5:7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। See, हम रूप को देख कर नहीं, हम रूप we are walking not by seeing the things, जो दिखता है उसके द्वारा हम नहीं चलते, but we walk by faith. हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। What is the faith? विश्वास क्या है? When you hear God's word, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, then you believe it, या आप विश्वास करते हो, then you accept it, फिर आप अपनाते हो, then you walk accordingly. तो फिर आप उसके द्वारा फिर चलते हो। Now, अभी God said, परमेश्वर ने कहा, He sent His word and healed them, परमेश्वर ने इसका वचन भेज के उनको चंगा किया है and He delivered them from destruction. और नाश से उनको बचाया है। That's what Bible says. बाइबल कहती है, God healed them means, परमेश्वर उनको चंगा किया मतलब, according to the Bible, बाइबल के द्वारा He sent a word and healed them. परमेश्वर ने अपना वचन भेज कर उनको चंगा किया। He sent a word वचन भेजा, and healed them. उनको चंगा किया। God said, परमेश्वर ने कहा, I will bring health and healing, मैं चंगाई और छुटकारा लाऊंगा and I will heal them. और उनको चंगाई करूंगा I will give them abundance of peace. और उनको शांति दूंगा। How? किस तरीके He से did it. उसने किया? It's not that He's going to do. वो करने वाला ऐसी बात नहीं है, He did it. उसने किया है। How? कैसे? By sending His word. उसका वचन भेजने के द्वारा। What is how it is? वो कैसा हो गया? What is that word? वो वचन क्या है? That word
वो शब्द John chapter 1 verse 14 says, यूहन्ना 1:14 में लिखा है, that word has become flesh, वो शब्द dwelt again among us. और वो शब्द हमारे बीच में शरीर बन के रह गया। That person is Jesus. यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। That word, वो शब्द, God sent His word. परमेश्वर ने वचन को भेजा, That word came to this earth वो वचन इस दुनिया में आया 2000 years ago 2000 साल पहले as a man, इंसान बन के, and He become flesh. वो देहधारी हो गया, He came and walked on this earth. वो दुनिया में चल रहा था। That is the word. वो वचन है, That is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। Know it, my beloved. जान लीजिए मेरे प्यारो, This is to be known. ये समझ लेना है, This is to be believed. ये विश्वास करना है, This is to be accepted. ये अपनाना है। This is God's word. ये परमेश्वर का वचन है, It will never tell lie. वो कभी झूठ नहीं कहता। Not what is happening. क्या हो रहा है वो नहीं, Not what we see. जो आप देखते हो वो नहीं, That is not the truth. वो सच्चाई नहीं है। Truth is God's word. सच्चाई ही परमेश्वर का वचन है। Then the Bible tells फिर बाइबल कहती है, that word Jesus Christ. वो वचन यीशु मसीह, Bible says Isaiah chapter 53:4. यशायाह 53:4 में लिखा है। What it says it is. यहाँ पर क्या लिखा है? Isaiah 53:4 says, यशायाह 53:4 में लिखा है, Surely He has bore our griefs and carried our sorrows. Isaiah 53 verse 4. Read it in English. यशायाह 53:4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। बस देखिए ना. See this. कहा, देखिए Here it is written. यहाँ पर लिखा है, निश्चय, निश्चय, surely, पक्का, उसने, कौन? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ने हमारी रोगों को सह लिया. हमारे रोगों को सह लिया है। निश्चय, न पक्का, surely he has carried all our sickness and diseases. और उसने हमारे दुखों को और हमारे बीमारी को उसने सह लिया, उठा लिया, And carried our sorrow. और हमारे दुखों को ले लिया। My beloved, मेरे प्यारो, think of it. सोचिए, If Jesus Christ has carried all your sickness and disease, where is the sickness on your body? यीशु मसीह ने पूरा बीमारी और जिसको ले लिया है, तो फिर बीमारी आपके शरीर में आई कहां से? See, Bible say, बाइबल लिखता है, I'll tell you now. आपको मैं बोलता हूं, Now here is, ये है, he is having here. This is sickness. ये मेरा बीमारी है। Jesus, यीशु मसीह surely पक्का he has taken your sickness आपका बीमारी को ले लिया है, and carried all his sorrow. आपका हमारे दुखों को ले लिया है। Tell me, does he have a sickness in his body? अभी मुझे बताओ, मेरे शरीर में अभी बीमारी है क्या? Which one you believe? आप क्या विश्वास करते हो? What God say you believe? जो परमेश्वर कहता है विश्वास करते हो, Or what is happening in the world you believe? या दुनिया में जो चल रहा है उसके ऊपर विश्वास करते What हो? you see you believe? जो आप देखते हो विश्वास करते हो, Yeah, what God says you believe. या परमेश्वर जो कहता है उसके ऊपर विश्वास करते हो? This is very ये important. बहुत महत्वपूर्ण है, Understand it. समझ लीजिए। He says, वो कहता है, God sent his word. परमेश्वर ने वचन को भेजा, That word became Jesus. वो वचन यीशु मसीह बन गया, That word is a man. वो वचन यीशु मसीह इंसान है, And he took all our sickness upon himself. उसने अपना खुद का बीमारी को उसके ऊपर ले लिया, Surely he has taken. निश्चय ले लिया। Now tell me, do you have a sickness in your body? अभी मुझे बताओ, आपके शरीर में बीमारी है क्या? According to God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार Which is the truth? सच्चाई क्या है? Truth is, you have no sickness in your body because Jesus already took it. सच्चाई यह है कि अभी आपके पास बीमारी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको निकाल के ले लिया है। Now you see, Jesus took the sickness. यीशु मसीह ने बीमारी ले लिया है। Why the sickness has come? अभी बीमारी क्यों आया है? Because of the sin the man committed. इंसान ने जो पाप किया उसकी वजह से बीमारी आ रही है, Because of sin only sickness comes. और पाप की वजह से बीमारी आती है। Root of sickness is sin. और पाप का जड़ है, बीमारी का जड़ है पाप। Reason? How can you say? या ऐसा कैसा हो सकता है? When Jesus was here on this earth, जब यीशु मसीह दुनिया में था, one day एक ही दिन he was there in a house.
वो घर में था, So many people gathered to listen the word. बहुत लोग जमा हो गए थे वचन सुनने के लिए। At that time, उस समय they brought a paralytic man. एक पैरालिटिक आदमी को वो लोग लेके आए। Four people carried a paralytic man. 4 लोग उसको उठा के लेके आए। Then the paralytic, there was no place. They closed, they opened the roof and brought near Jesus. आने के लिए जगह नहीं, उन्होंने रूफ को निकाल के यीशु मसीह के सामने उसको छोड़ दिया। Then Jesus saw them. जब यीशु मसीह उसको देख लिया, He said one word. वो एक ही बात बोला। Mark chapter 2 verse 5. मार्क 2:5, Mark chapter 2 verse 5. It मार्क says, 2:5 what he said? क्या लिखा है मार्क 2:5 में? मरकुस When 2:5। Jesus saw their faith, he said to the paralytic, He said to the paralytic, Son, your sins are forgiven you. that's all. मरकुस 2:5 में लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। See now what Jesus did? यीशु मसीह ने क्या किया? First, सबसे पहले, my son, मेरे बेटे, the sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। Then he said, फिर वो कहा, come on, get up उठ and walk. और चल। He got up and walked. वो उठ के चलने लगा। Why this man was lying there paralytic? वो लकवे का रोगी क्यों था? Because of sin. पाप की वजह से। Because the origin of all the sickness is coming from the sin. और सारी बीमारी की जड़ है वो पाप है। Understand? समझ लीजिए, What God did? परमेश्वर ने क्या किया? What Jesus said? यीशु मसीह ने क्या किया? First removed that thorn from his body. उसके शरीर से कांटे को निकाल दिया। The reason for the sickness, he removed it. बीमारी का जड़ को ही निकाल दिया। Son, your sins are forgiven. बेटे तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। Then he got up and walked. उठ के चले गया। Same thing. उससे वही बात। One man was lying there 38 years. 38 साल से एक आदमी पड़ा था। Jesus went nearby. यीशु मसीह वहां पर गया। He asked a question. उसने सवाल पूछा, Do you want to be made well? तुझे चंगा होना है? Then the man said, nobody is there to help me. ये आदमी बोलते कि मेरे पास मदद करने के लिए कोई नहीं है। Jesus said, get up and go. यीशु मसीह बोलते उठ और चले घर पे Get जा। up, take your bed and go. उठ और अपना बेड लेके चले जा। He took the bed and gone. उसने अपना बेड लेके चले गया। After some day, कुछ दिनों के बाद he met him. उसको मिला, He met him. वो उसको मिला, Jesus met him. यीशु वो आदमी से मिला, He told him, उसको बताया, see, now you are healed. देख अभी तू चंगा हो गया है। Now do not go and sin, that worst thing may come. अभी जाके फिर से पाप मत कर, नहीं तो फिर और भी तेरी कंडीशन और ज्यादा खत्म हो 38 जाएगी। years he was sick. 38 साल से बीमार था। What is the reason? क्या वजह था? Sin. पाप। He may not be knowing about it. वो जानता नहीं था, That's the root of it. वो उसकी जड़ है। Understand it, my beloved? समझ लीजिए मेरे प्यारों, Jesus, यीशु मसीह, God sent a word. परमेश्वर ने वचन के भेजा The word became man. और वचन इंसान बन गया। That man is Jesus Christ. वो वचन यीशु मसीह है Surely he has took all the sickness upon his body. और निश्चय अपना बीमारी उसने खुद के शरीर के ऊपर ले लिया। Bible says 1 Peter chapter 2:24. 1 पतरस 2:24 में बाइबल कहती है, Believe God's word. परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। 1 Peter 2:24. 1 पतरस 2:24 Here it says, यहाँ पर लिखा है, Himself bore our sins in his own body. Jesus himself took our sin in his own body On the tree, on the tree, on the cross, that we, having died to sins, having died to sin, might live for righteousness, might live for righteousness, by whose stripes by whose stripes you were healed. you were healed. यहाँ पर लिखा है 1 पतरस 2:24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। By his stripes you were healed. उसके मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। That means you were healed. तुम बीमारी से चंगे हो चुके हो ऑलरेडी। Believe on God. परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। God said, परमेश्वर कहता है, he sent his word and healed them. उसने वचन को भेज कर उनको चंगा किया। That how? कैसा? That word came as a man. वो वचन इंसान बन के आया, That is Jesus Christ. वह यीशु मसीह।
And Jesus, और ये यीशु मसीह, the root for all the sickness and disease and death, that is the sin, he took all the sin upon himself. और जो सारी बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी, उसका जड़ जो है पाप, उसने अपने ऊपर ले लिया। And he has gone to the cross. वो क्रॉस के ऊपर गया, He died to sin वो पाप के लिए मर गया, so that we may live for righteousness. ताकि हम धार्मिकता के लिए And जीवित रहे। through the stripes on his body, और उसको उसने कोड़े खाने की वजह से you were healed. आप चंगे हो चुके हो, You were healed. आप चंगे हो चुके हो, Not you will be healed. आप चंगे हो जाएंगे ऐसे नहीं, You are already healed. तुम पहले से चंगे हो चुके हो। That's the Bible say. बाइबल ऐसा कहता है, God say, परमेश्वर कहता है you are healed. तुम चंगे हो चुके हो, He healed you. उसने तुमको चंगा किया। Jesus says, यीशु ने कहा by stripes you were healed. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। When you are healed, जब तुम चंगे हो चुके when हो, you don't have sickness, आपके पास बीमारी नहीं है, from where you want healing? तो फिर और आपको चंगाई कहाँ से चाहिए? Who is telling you need healing? कौन कहता कि आपको चंगाई चाहिए? Is it not somebody telling you lie? आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा है। Who will tell the lie? कौन झूठ बोलता है? The devil tell the lie. शैतान झूठ बोलता है। The devil tell the lie. शैतान झूठ बोलता है। You must be healed. आप चंगे हो जाएंगे। You need healing. तुमको चंगाई की जरूरत For है। healing, और प्रभु को चंगा कर, you take this. ये ले ले, You buy this. ये खरीद ले, You do this. ऐसा कर, ऐसा कर. वैसा कर, वैसा कर. वैसा कर। झूठ बोल रहा है. खोटो बोल दो, It is a lie. ये सब झूठ है। It is coming from directly from the devil. वो सब शैतान से आ रहा है, Directly पूरी तरह से from the devil. शैतान से आ रहा है डायरेक्टली, To kill you. आपको खत्म करने के He लिए, will give more poison to kill you. और ज्यादा आपको जहर देगा आपको खत्म करने के Now लिए। a question. अभी सवाल यह है, Whose voice you will listen? किसकी आवाज आप सुनोगे? Whose word you will listen? किसका वचन के ऊपर आप विश्वास करोगे? It is not that what you see, my beloved. जो कुछ आपको दिखता है वो जरूरी नहीं भाई साहब। Not that. What नहीं, is नहीं। written in the Bible? बाइबल में क्या लिखा है? What God says. परमेश्वर क्या कहता है? If you abide in my word, अगर आप मेरे वचन में बने रहोगे, you will know the truth. आप सच्चाई जानोगे, The truth will make you free. सच्चाई आपको आजाद करेगी। That means regarding sickness and disease. इसका मतलब बीमारी और तकलीफ, Let it be any sickness or any disease. और कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, According to God's word. परमेश्वर के वचन के द्वारा, In the name of Jesus यीशु के Christ. मसीह के नाम से, All sickness and disease and affliction, oppression has been healed 2000 years before. सारी बीमारी, तकलीफ, परेशानी की जड़ है 2000 साल पहले खत्म की गई है। If you believe Jesus, अगर यीशु पर भरोसा if करोगे, you believe Jesus' यीशु पर word, विश्वास, इसके वचन पर if विश्वास you करोगे, believe God, परमेश्वर पर विश्वास करोगे, if you believe Jesus, यीशु पर भरोसा करोगे, you have no sickness on your body. तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं है। Let it be any bimari. कोई भी बीमारी क्यों ना हो, Maybe a virus, वायरस असेल, maybe a cancer, कॅन्सर असेल, maybe asthma, अस्थमा असेल, maybe TB, maybe TB a असेल, pain, or काय असेल, anything. कुठलाही आजार असेल, You don't have. तुम्हारे पास नहीं है। Hello. हेलो, Then all the people say, I have, फिर लोग कहते मेरे पास, मुझे है, I feel it. मुझे लग रहा है। What God said, परमेश्वर क्या कहता है? take my name मेरा नाम ले लो, and cast him out. उसको हकाल दो। You take any sickness, आप कोई भी बीमारी लीजिए, any pain कोई भी दर्द को लीजिए, that is on the body, वो जो शरीर में है, you are feeling, आपको लग रहा है, you are seeing. आपको दिखाई दे रहा है। My beloved, मेरे प्यारो, these are all lie of the enemy वो सब शत्रु का झूठ है, according to the word. वचन के द्वारा। Why? क्यों? Since you do not know the word of God, आपको परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है, since you do not know the truth, आपको सच्चाई मालूम नहीं है, the enemy is deceiving you. शत्रु आपको फंसा रहा है, He is afflicting you. वो आपको तकलीफ में डाल रहा है। My beloved, मेरे प्यारो, I will show you. आपको मैं बोल रहा हूँ, For an example, जब you see now I took the pastor's hand. पास उन्होंने मेरा हाथ पे ले लिया है, See, this is my hand. ये उनका हाथ है, And I'm pinching here. यहाँ पर उन्होंने मुझे पिंच किया, देखो, I am pinching, okay? उनको पिंच किया, मुझे पिंच किया, I am holding it. Now he is getting pain. मुझे दर्द हो रहा है, He is getting pain. मुझे दर्द हो रहा है। Why he is getting pain? क्यों दर्द हो रहा है? Because I am another person coming and pinching. You see that? क्योंकि उन्होंने आके वहां पर मुझे पिंच किया, इसके लिए मुझे दर्द हो रहा है, And you feel और pain. मुझे दर्द हो रहा है।
What you do? मैं क्या करता हूँ? Oh, pain. ओ दुख रहा है, Oh, pain. हे दर्द, He will go to hospital. मैं दवाखाना जाऊंगा। Then hospital doctor will say, डॉक्टर बोलेगा yes, you take this. ये दवाई ले लो, You take this tablets. ये टैबलेट्स ले लो, You take this capsule. ये कैप्सूल ले लो, You take this. ये ले लो, You do this. या ऐसा करो, ऐसा करो. वैसा करो, वैसा करो. वैसा करो, You will do all. सब करेंगे। Then you will ask how much is the fees? फिर कितना पैसा हो गया? 1000. 1000। You paid for it. दे दिया पैसा। Doctor, डॉक्टर, when will I get healed? मैं कब ठीक होऊंगा? When will I get healed? मुझे कभी चंगाई मिलेगा? Don't worry. चिंता मत एक कर, हफ्ते में हो जाएंगे। एक हफ्ते में हो जाएगा। नहीं होता तो नहीं होता तो then you continue for 10 days. और 10 दिन दवाई ले ले, Definitely you'll be healed. फिर ठीक हो जाओगे। Pain is still there. अभी भी दर्द उधर है ही है, This is what happening. यही हो रहा है। What is the easy way? और सबसे आसान रास्ता कौन सा है? Jesus said, यीशु ने कहा it is enemy. वो शत्रु है, This pain is an enemy. ये दर्द शत्रु है। Somebody is oppressing you. कोई तो मुझे तकलीफ कर रहा है, Someone is pinching you. कोई तो मुझे पिंच कर रहा है, Somebody is oppressing, afflicting you. कोई तो मुझे तकलीफ दे रहा है। What you have to do? तुमको क्या करना है? Take my name, मेरा नाम ले लो, kick him out. उसको लात मारो। Now he comes to know this. अभी मुझे मालूम पड़ गया, And he understood this pain. मुझे मालूम पड़ गया वो तो क्या है। What he does? मैं क्या करता हूँ? He take his other hand मैं दूसरा हाथ लेता हूँ and he will kick me on this hand. और हाथ के ऊपर मारता हूँ And he will kick him out. और उसको दांत मार के निकाल दूंगा। Hand come out. हाथ अच्छा हो गया, You are healed. तुम ठीक हो गए हो। This is what is happening. This is what the devil is doing in the world today. दुनिया में आज शैतान यही कर रहा है। This is what the sickness and disease ये is. बीमारी आज तकलीफ यही कर रहा है। It is a lie. ये झूठ है, Sickness is a lie. ये बीमारी झूठी है, It is a devil. ये शैतान है, It is a evil. ये शत्रु है। He comes to steal, kill and destroy. ये आपको नाश करने के लिए, घात करने के लिए, खत्म करने के लिए आ रहा The है। truth is, सच्चाई ये है, Jesus already healed you यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपको चंगा किया है by his stripes. उसके कोड़े खाने से, And he underwent all the pain and sorrow. और ये सब दुख और तकलीफ God already healed them परमेश्वर ने उनको चंगा किया है by sending his son Jesus Christ. यीशु मसीह को अपने बेटे को भेजने के द्वारा, वो उसका वचन को भेजने के द्वारा। Anybody who believes, जो कोई विश्वास करेगा, and if we tell the enemy to get out in the name of Jesus, और शत्रु को कहे कि यीशु के नाम से निकल जा, they will go away. वो निकल जाएगा। That is the truth. ये सच्चाई है। God told us. प्रभु ने हमको बताया, God told. प्रभु ने बताया। Mark chapter 16 verse 17. मार्क 16:17, Those who believe in me, जो मेरे पर विश्वास करेंगे, he who believes in me, जो मेरे पर विश्वास करता है, these signs shall follow. ये चिन्ह उनको दिखाई देंगे। They will take my name. वो मेरा नाम लेंगे, They will cast out the devil. वो शत्रु को निकाल देंगे In my name, मेरे नाम में। they will take up the serpent. वो सांपों को उठाएंगे, Throw him out. उसको भगा देंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम से। That's what we have to do. यही करना है। First, you should know the truth. पहले आपको सच्चाई मालूम करना है, You should know the truth. आपको सच्चाई मालूम होना चाहिए, Then फिर you can do so. आप ये कर सकते हो। Beloved, प्यारो, so many testimonies are there. इतनी गवाहियां आज हम देखते हैं, How the people are getting healed. कैसे लोग ठीक हो रहे हैं। They take the name of Jesus. यीशु का नाम लेते हैं, In the name of Jesus, यीशु के नाम से। you spontaneously get out of my name. स्पॉन्टेनियस गेट आउट इन जीसस नेम, यीशु के नाम से निकल जा। Next second is gone. दूसरे पल में वो निकल जाता है। Back pain. बैक पेन, In the name of Jesus, यीशु के नाम से। back pain. बैक पेन, Go out from my body. निकल जा मेरे शरीर से। Immediately they are healed. इमीडिएटली निकल जाता है। Tumor, ट्यूमर, cancer. कैंसर, In the name of Jesus, यीशु के नाम से। you devil cancer, get out from my body. कैंसर की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। They immediately to go away. इमीडिएटली निकल जाएगा, Because sickness is a person, an evil person. क्योंकि बीमारी एक शत्रु है। Sickness is a dirty spirit. एक बीमारी जो है वो गंदी आत्मा है, It is an evil spirit. वो दुरात्मा है, It's an unclean spirit. वो अशुद्ध आत्मा है। You should know that. ये आपको मालूम होना This चाहिए। authority Jesus has given to his disciple. यीशु मसीह ने अधिकार उसके चेलों को दे दिया। All the people, those who believe on Jesus Christ, जो सब लोग यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, those who accepted Jesus Christ, यीशु मसीह को अपनाएंगे, they are the disciple of Jesus वो Christ. यीशु मसीह के चेले हैं। For this disciple, ये चेले, Matthew chapter 10:1 says, मत्ती 10:1 में लिखा है, Jesus called the disciple, यीशु ने चेलों को बुलाया, gave them authority उनको अधिकार दिया to cast out all
unclean spirits. सब अशुद्ध आत्मा को निकालने का, Cast out unclean spirits. सारे अशुद्ध आत्मा को निकालने का, Heal all kinds of sickness and all kinds of disease. और सब तरीके की बीमारी और रोगों को चंगा करने का अधिकार दे दिया। That means cast out these wicked enemies. ये दुष्ट शत्रु को हकाल देने दे दो। That authority you have it. वो अधिकार आपके पास है, It is in your hand. ये आपके हाथ में है, It is not in the hand of any man. किसी आदमी के हाथ में नहीं है, It is not in the hand of anybody's advice. किसी के एडवाइस के ऊपर नहीं है, It is not there anybody's deceiving plan. किसी के फंसाने के प्लान में नहीं है। But you should believe in Jesus. आपको विश्वास करना है यीशु मसीह You should पर, believe on God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, You should accept God's word. परमेश्वर के वचन को अपनाइए। What God says is true. प्रभु क्या कहता है वो सच्चाई है, Anything out of God's word is not true. परमेश्वर के वचन के बाहर का कुछ भी सच्चाई नहीं It's है, all lie. वो सब झूठ है। This lie comes from the enemy. ये झूठ शैतान से आता है, The enemy is holding the world under lie. और जो शैतान है, जो शत्रु है, उसने सारी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है By lies. झूठ के द्वारा, And he will tell lie. और वो झूठ बोलता है, People believe it. लोग विश्वास करते They हैं, will do all that he says. और जो बोलते हैं वो करते हैं, They are under his captivity. और वो उसके बंधन में आ चुके हैं, They will never get freedom. और उनको कभी भी आजादी नहीं मिलेगी, Finally, he will take them into destruction. और लास्ट में आखिरी में उनको नाश में लेके He will जाएगा, take them into eternal hellfire which is prepared for them. और वो हमेशा का अग्नि में उनको लेके जाएगा। Many people do not know about it. बहुत लोग ये जानते नहीं हैं। Beloved, you are living on this earth very few years. प्यारे दोस्तों, आज इस दुनिया में आप सिर्फ कुछ सालों के लिए जीवित रहते हैं। One day you will die and go. एक दिन आप ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे। If you believe the lie of the devil, जो शैतान के झूठ के ऊपर विश्वास करोगे, if you obey and do whatever he says, वो जो कहता है वो आप करोगे, and one day you will die, एक दिन आप मर जाओगे, you will go with him आप उसके साथ जाओगे, into eternal fire forever and ever. और हमेशा हमेशा के लिए नरक के अग्नि में। But if you believe God, अगर परमेश्वर पर विश्वास करोगे, if you accept God's Son Jesus Christ, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह को अपनाओगे, then you will be the Son of God. You will go there in the house which is prepared in heaven. और स्वर्ग में जो आपके लिए घर तैयार किया गया उसमें जाके रहोगे, Forever you will live there. हमेशा के लिए वहां पर जीवित रहोगे। That's why John 3:16 says, "Whosoever believe the Lord Jesus Christ, they will have eternal life. They should not perish. They will never perish." और इसीलिए बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो कोई इसको पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, लेकिन हमेशा के लिए जीवित रहेगा। What do you want to do? आपको क्या करना है? Can you accept the sickness that is there in your body? जो शरीर जो बीमारी आपको उसको एक्सेप्ट करोगे, It's an enemy. वो आपका शत्रु है। God said, परमेश्वर ने कहा resist him. उसको विरोध कीजिए, Kick him out. उसको लात मार के भगा Cut दीजिए, him out. उसको टुकड़ा कीजिए, Take my name. मेरा नाम ले लो, Don't give place. उसको जगह मत देना, Cast him out. उसको हका लो। Now, अभी let it be any sickness on your body. कोई भी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, Anywhere. किधर भी Come on, believe Jesus Christ. विश्वास कीजिए यीशु मसीह पर, Take the name Jesus. यीशु का नाम दीजिए, Speak to the sickness. वो बीमारी से कहिए, Speak to that sickness. वो बीमारी से कहिए, Whatever may be the sickness. कोई भी बीमारी क्यों ना हो, Maybe a pain. कभी कभी दर्द रहेगा, maybe a tumor. कोई ट्यूमर होगा, Speak to the tumor. वो ट्यूमर से कहिए, Tell the tumor. ट्यूमर से कहिए, You tumor. हे ट्यूमर, I say to you. मैं तुझे कहता हूँ यीशु के In नाम the से, name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, Get out of my body. मेरे शरीर से निकल जा, Name Jesus. Get out of my body. मेरे शरीर से निकल जा। Jesus, thank you. यीशु धन्यवाद, I receive the healing. मैं चंगाई को अपनाता हूँ, Healing is a gift from God. और ये चंगाई ये परमेश्वर की ओर से आपको गिफ्ट है, It is a gift from God. परमेश्वर की आई हुई गिफ्ट है आपकी तरफ 1 के लिए। Corinthians chapter 12:9 says it's a gift of healing. 1 कोरिन्थियों 12:9 में लिखा है कि वो परमेश्वर से आया हुआ दान है, भेंट है आपके लिए। Receive the healing. आपको चंगाई को लीजिए, You may be any condition. आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, Right now. अभी You say, आप कहिए, you sickness. हे बीमारी, Your disease. हे बीमारी, Get out of my body. मेरे शरीर से निकल जा, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Then you say, फिर आप Jesus. कहिए, यीशु Lord. प्रभु, I receive the healing. मैं अपनाता हूँ मैं चंगाई को, In the name of Jesus. यीशु के नाम से I am healed. मैं चंगा हो गया You हूँ, are free. तुम चंगे हो। The enemy has no right. शत्रु को आपके ऊपर अधिकार नहीं है, Very boldly tell him, आपको दृढ़ता से कहना है, get out निकल जा from my body, मेरे शरीर से, from my mind, मेरे मान से, from my home, मेरे घर से, my children, मेरे बच्चों से, my country. मेरे देश से, Get out निकल जा in Jesus' name. यीशु के नाम से।
He will go. वो निकल जाएगा, He has to go. उसको जाना ही पड़ेगा। Because, क्योंकि my beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाई बहनों, if you believe Jesus Christ, आप जब यीशु मसीह पर भरोसा करोगे, if you have received Jesus, यीशु मसीह को अपनाओगे, if you have received अगर उसको अपनाया, and you received Jesus, यीशु मसीह को अपनाया, then you are son of God. आप परमेश्वर के बेटे हो। God has given you authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, He has given an authority. आपको अधिकार दे दिया है। Take his name उसका नाम लीजिए, and cast out the devil. वो शैतान को हकल दीजिए। All authority, all the power of the enemy, authority God has given to you. शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार दिया है। Luke chapter 10:19 says, लूक 10:19 में लिखा है, I am giving you authority. मैं तुमको अधिकार देता हूँ। Jesus said, I am giving you authority यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आपको अधिकार देता हूँ to trample serpent and scorpion सांप और बिच्छू को रौंदने का, and all the power of the enemy. और शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर I am giving you authority. मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। Nothing by any means hurt you. किसी बात को कोई आपको हानि नहीं होगी। Exercise the authority God has given to you. परमेश्वर जो आपको अधिकार दे उसको इस्तेमाल कीजिए। Take the name Jesus. यीशु का नाम लीजिए, Tell the enemy to get out. शत्रु को बताइए निकल जा, Give him order to go out. उसको आज्ञा दीजिए निकल जा, Command him to go out. उसको आज्ञा दीजिए निकल जा। Make a decree. आप घोषित कीजिए, Because क्योंकि God has already made you a king. परमेश्वर ने आपको पहले से राजा बनाया है। King, whatever the king says, that is an order. राजा जो कहता है वो ऑर्डर हो जाती है, That is a law. वो नियम है, That is a decree. वो डिक्री है, Nobody can disobey that. और कोई भी उसको आज्ञा को नहीं तोड़ सकता। Same way, उसी रीति से the devil cannot say no to you. शैतान आपको ना नहीं बोल सकता। This authority God has given. ये अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। Whom do you believe? आप किसके ऊपर विश्वास करोगे? You believe your own Father who is in heaven? आपका खुद का पिता जो स्वर्ग में है, उसके ऊपर विश्वास करोगे? Do you believe the God who came and loved you and paid a price for you on the cross of Calvary? और जो पिता खुद इस दुनिया में आया और आपका कलवरी के ऊपर, क्रूस के ऊपर मर के हमको उसने प्यार दे दिया, And he has redeemed you. आपको आजाद किया, He saved you. आपको बचाया, He has redeemed you, delivered you from the power of darkness. और अंधकार के सामर्थ्य से आपको छुड़ाया। Do you love him? आप उसको प्यार करोगे? Do you believe him? उसके ऊपर विश्वास करोगे? Or do you believe the devil who is being destined to be thrown into the lake of fire? क्योंकि या फिर वो शैतान के ऊपर विश्वास करोगे जो हमेशा के नरकाग्नि में जाने के लिए तैयार है। God is coming now, Jesus. यीशु मसीह अभी आ रहा है, He is coming वो आ रहा है, very soon. बहुत जल्दी आ रहा है। The devil and his angels will be thrown into the lake of fire. और शैतान उसके दूतों को नरकाग्नि अग्नि में डाल दिया जाएगा। That's why very soon that he want to take all people to with him. इसलिए वो चाहते कि बहुत से लोगों को अपने साथ में लेके जाना चाहता है। All those who are under my voice, जो सब मेरी आवाज सुन रहे हैं, let me say to you, मैं आपको बताता हूँ, your life तुम्हारा जीवन is yours. वो तुम्हारा है, It is belongs to you. वो तुम्हारा खुद का है, It is your choice. वो आपका चॉइस है। If you obey the devil, if you believe the devil and obey him and do all that he is saying, finally you also will be thrown into the lake of fire. अगर आप शैतान की बात मानोगे, उसकी आज्ञा को मानोगे, उसके साथ रहोगे, वो जो करता है वो करोगे, तो आप भी उसके साथ हमेशा के लिए नरक के अग्नि में डाल दिए जाओगे। It belongs to him. ये आपके ऊपर निश्चय है। Understand. समझ लीजिए। Come into the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान की तरफ आइए। Humble yourself. खुद को हम्बल कीजिए। Love the Lord God प्रभु से प्यार कीजिए with all your heart. आपको पूरा दिल से। Go to him. उसके पास जाइए। Whatever you have done, आपने जो कुछ किया, everything he will forgive you. वो सब बातों को आपको क्षमा करेगा। And he will wash you with his own blood. आपके लहू से अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध करेगा। He will accept you आपको अपनाएगा into his kingdom उसके राज में as his own children. अपना बच्चा बनके, And you can live with him forever and ever. और हमेशा के लिए उसके साथ जीवित रहोगे। Your choice makes the difference. आपके चुनाव से फर्क होता है। It is your decision. ये आपका चॉइस है, It is up to you. ये आपके हाथ में है। This nobody can take the choice. ये आपके लिए ये कोई चुनाव नहीं कर सकता। The enemy is trying these days शत्रु इन दिनों में कोशिश कर रहा है to take the choice is under his control. आपका जो चुनाव है उसके कंट्रोल में करना चाहता है। That is what he is trying to do. आज वो वही करने की कोशिश कर रहा है, So that he may able to destroy all people with his own way. ताकि अपने तरीके से सारे लोगों को नाश कर सके। Be careful, my beloved. आप सावधानी बरतिए मेरे लोगों, Humble yourself. खुद को नम्र कीजिए।
Go to Jesus. यीशु के पास जाइए, Call upon him. उसको नाम लीजिए, You'll be different. आप पूरी तरह से बदल जाओगे, You'll be blessed. आप आशीषित हो जाओगे, You're healed. आप चंगे हो जाओगे, You'll have the life eternal. आपको हमेशा का जीवन मिलेगा, You can live with him forever and ever. आप हमेशा के लिए उसके साथ जीवित रहोगे। Shall we pray? हम लोग प्रार्थना करेंगे। Kick the enemy out. शत्रु को लात मार के भगा दीजिए, You're taking the name Jesus. यीशु मसीह का नाम लेने के द्वारा। Shall we pray? हम लोग प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्यारे स्वर्गीय पिता, I want to thank you and praise you for the word of your truth. आपका सच्चाई का वचन के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। Thank you for helping us to share the truth to these dear people. ये प्यारे लोगों को आपको वचन बताने के लिए, हमें सहायता करने के लिए धन्यवाद। Father, पिता, I ask you, मैं तुझसे विनती करता हूँ, convict these dear people so that they may be able to take the right decision. इन लोगों को आप स्पर्श करना ताकि वो सही निर्णय ले सके। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, by your power, आपके सामर्थ्य के द्वारा let these dear children get conviction. ये प्यारे बच्चों को आज उनको दिल को छू लेना, Let them be convicted उनको आज स्पर्श होना चाहिए so that they may take the right decision. ताकि वो सही निर्णय ले सके। Father, I want to thank you. पिताजी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, You have already saved all the people. तूने सब पहले से सभी को बचाया है And you have already purchased all of them. और तूने सबको खरीद भी लिया है Legally, they are all belongs to you, Lord. और लीगली वो सारे तुम्हारे हैं। You paid a very high price. तूने बहुत बड़ा कीमत चुकाया है, They are belongs to you. वो सब तुम्हारे हैं प्रभु। Devil has no right on them. शैतान को उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, Devil cannot touch them. शैतान उनको छू नहीं सकता He got no power or authority over anybody on this earth और शैतान को इस दुनिया में किसी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, because they are all purchased by you. क्योंकि उन सभी को तूने खरीद लिया है। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। Now, Father, अभी पिता, let all the sickness, disease, and be gone from the people in the name of Jesus. सब बीमारी और सारे रोग लोगों से यीशु के नाम से निकल जाए। You devil, हे शैतान, you Satan, हे शैतान, you evil forces, हे तुम दुरात्मा की शक्ति, you power of darkness. अंधकार का साम्राज्य, In the name of Jesus यीशु मसीह के Christ, नाम से I command you, मैं तुझे आज्ञा करता I हूँ, order you, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, take your hand away from the people. तुम्हारा गंदा हाथ लोगों से निकाल दे। Remove every sickness and disease which you have put upon the people. लोगों के ऊपर जो तेरे बीमारी और तकलीफ को डाला है, Take it and run away. लेके भाग जा, Take it and run away. वो लेके भाग जा In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Don't touch them. उनको स्पर्श मत करना, Don't touch them. उनको स्पर्श मत करना। Every cancer, हर एक कैंसर, you spirit of cancer, कैंसर की आत्मा, leave the body. इनका शरीर को छोड़ दे In the name of Jesus. यीशु के नाम से। You virus, वो वायरस in the name of Jesus, यीशु के नाम से leave the body. शरीर को छोड़ गए Right now. अभी, Right now. अभी You spirit of fear. डर की आत्मा Right now. अभी In the name of Jesus. यीशु के नाम से Leave the people. लोगों को छोड़ दे, Leave the people. लोगों को छोड़ दे। You have no right to touch तुझे them. कोई अधिकार उनको छूने God का। has already given spirit of power to them. प्रभु को सामर्थ्य की आत्मा दिया है, God has already given spirit of love to them. प्रभु को प्यार की आत्मा दिया है। Let the love and power of God flow through them. प्रभु का प्यार और सामर्थ्य के अंदर काम करे In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Father, I thank you. पिता, मैं तेरा धन्यवाद Let करता हूँ। all these people, oh ये Father, सारे लोग प्रभु, let them experience a great deliverance in their body. उनके शरीर में उनको छुटकारे का आनंद मिले, Let them experience a great deliverance in their heart and mind. उनके दिमाग में, उनके शरीर में, उनको आत्मा में उनको छुटकारे का आनंद मिले, Let them receive a peace in their body. उनके शरीर में इनको शांति मिले, Let the strength of God come upon them. प्रभु की शक्ति उनके अंदर काम करे In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Let the Spirit of God come upon them. परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आ जाए, Holy Spirit, पवित्र आत्मा in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से we pray. हम लोग प्रार्थना करते हैं, Let the Spirit of God take over all people. परमेश्वर की आत्मा उनको कब्जा करे, Let them be anointed by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा उनको अभिषेक से भर दे In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम से। help these people, oh Father, इन्हें सहायता करना by the प्रभु, power of the Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा to resist the enemy शत्रु को विरोध करे, and receive God प्रभु का स्वीकार करे and receive the blessing of God, और परमेश्वर के आशीष को अपनाए, receive the healing of God, प्रभु की चंगाई को
अपनाएं, This is the strength of God. परमेश्वर की सामर्थ का Let स्वीकार करें, everybody's eyes be open सभी की आंखें खुल जाए so that they may be able to see the glory of God. ताकि वो प्रभु की सामर्थ को देख सके, So may able to see the glory of God. परमेश्वर का महिमा को देख सके। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। We give you glory. सो मान महिमा गौरव तुझे देते हैं, We give you all glory. सारी महिमा तुझे देते हैं। In the name of Jesus we प्रभु pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Beloved brothers and sisters, प्यारे भाई बहनों, you are already blessed. आप पहले से आशीषित हो चुके You हो, are already healed. आप पहले से चंगा हो चुके हो। No disease, no sickness, no evil can touch your body. कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ आपको छू नहीं सकता। Provided if you know Jesus and given heart to Jesus. अगर आपने आपको यीशु मसीह को जान लिया, अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया है, So तो you will have life eternal. आपको हमेशा का जीवन मिलेगा। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से be blessed. आप आशीषित हो जाओ। Share these truths. ये सच्चाई आप दूसरों को बांटना, Share this truth to other people. और लोगों को ये सच्चाई बांटना, Let them also receive life. उनको भी जीवन मिले, Let them escape from the hellfire. और उनको नरक की अग्नि से बचाया Let जाए, them escape from the evil, the deceiver. और ये शैतान को फंसा उनको फंसने से उनको बाहर निकले, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Thank you. थैंक यू, God bless you. गॉड ब्लेस यू। Amen.